ಬಟ್ ಈಗ ಬೇಡ. ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು ಅವರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹರಾಜು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸೇರೋಣ ಅಲ್ವಾ. नहीं, लेकिन अब सबके सामने नहीं करके बोल रहे वो अलग से खाली पहली बार आकर बाद में इशू हाँ वो पहले डिस्कस चूँकि एक डिस्कस कर रहे थे इस बार सर क्या डिस्कस हुआ वो उस पर बोलिए. बस वही एक साइड का ले लेंगे. ಹುಡುಗಿಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇದು ದೇಶ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇದು ದೇಶ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ. Now today, Karnataka's important Amir Shahid Maulana Saab, he wanted to discuss with me, with other some our Maulana Saabs, that the recent development in this state in education sector, our Muslim community ladies, our children's, what they facing about their cultural dress code. That issue, some development last 2 months back it has taken. Whatever from last 75 years, culture wise, what is their dress code is there. That has actually without any disturbance, it was continuingly they are wearing. But from 2 months back, this issue when started, children are suffering now. Maulana Sahab requested me, we want communal harmony, we want the education system not to collapse, not to spoil the future of the children. For that reason, you please try to convince the government. Whatever the incident took place 2 months back, previous what the system was there, that system convincing the government to continue that system, you please try to request the government. That is the direction he wanted, not only direction, he requested me. We want total peace in this state. Whatever he advised me regarding this, I tried to separate this issue to protect the interest of the students. That is the main issue. Other than that, nothing is there. So if the matter is before the court? No, it is there. What can be the alternate? Matter is before the court, I will agree. But we can't direct the court. You please spell out the decision of the verdict in this particular period. We don't know when they will going to actually spell out the verdict. But at least government, to safeguard the interest of the children,
they have to take the decision. They can take decision. Government is the ultimatum. Their responsibility is there. Government responsibility is there. This issue, whatever Maulana Sahab advised me, what is his pain is there in his mind, in his heart. He expressed everything. In that issue, we will try to set right this situation. आज की इस मजलिस में ऑनरेबल जनाब साबिक वज़ीर आला जनाब कुमार स्वामी यहाँ तशरीफ़ ले आए थे। हिजाब के सिलसिले में उनसे हम कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे थे, इसलिए हमने उनको बुलाया और वो यहाँ आए और उसी सिलसिले में गुफ्तगू हुई। बहुत देर तक वो बयान करते रहे और आखिर में बात उन्होंने यही कही कि मैं असम्बली में इस पर मैं कोशिश करूँगा कि पहले जिस तरीक़े से कॉलेजों में लड़कियाँ जाती थीं हिजाब के साथ या स्कार्फ के साथ, अब भी इसी तरीक़े से जाए, इसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना होने पाए। मैं इस बात की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि पूरे स्टेट के अंदर अमन बाकी रहे, किसी भी किस्म का कि कोई गड़बड़ ना हो। तो बहरहाल उन्होंने हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये वादा उन्होंने किया है कि इंशाअल्लाह असम्बली में ये बात उठाकर आइंदा कॉलेजों में वही सिलसिला लाने की बात हम रखेंगे कि जैसे पहले कॉलेजों में लड़कियां स्कार्फ और हिजाब के साथ जाती थी, अभी भी वो इसी तरीक़े से जाएंगी। इस तरह उन्होंने कहा और हमने भी उनसे यही दरख्वास्त की। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी लड़कियों के लिए उनकी तालीम में बग़ैर किसी किस्म की कोई कमी के वो उनके लिए इंतज़ाम हो जाए, बग़ैर किसी गड़बड़ के पूरे अमन के साथ वो तालीम हासिल करें। और अब इम्तिहानात के अय्याम हैं तो इंशाअल्लाह इम्तिहानात भी बहुत ही अमन के साथ वो दे सकें। बात के लिए हम आज की इस मीटिंग में जो बात हुई है उसकी रोशनी में हम पहले से ये चाहते थे कि लड़कियां अपने कॉलेज को जाएं और पूरे हिजाब के साथ जाएं। इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होगी। आप अपने हिजाब पर कायम रहें और अगर कोई गड़बड़ करता है, किसी कॉलेज का कोई प्रिंसिपल या और कोई दूसरा, तो आप वहाँ से बिल्कुल खामोश वापस आ जाएं अपने घर को। तो वहाँ रहकर कोई गड़बड़ ना करें, कोई आवाज़ और चीख पुकार न करें, हम यही कहते हैं। लेकिन उम्मीद है कि इसके बाद इंशाअल्लाह आपके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। खुदा करे कि इत्मीनान और चैन सुकून हो। दरअसल कोई ख़ास बात तो नहीं रही। हमारे कौम के रहनुमा अमीर शरीयत की दावत पे श्रीमान कुमार स्वामी यहाँ आए थे और अमीर शरीयत के साथ साथ दीगर हजरात की रिक्वेस्ट के बाद कुमार स्वामी ने एक कमिटमेंट दे के गए। श्रीमान कुमार स्वामी एक कमिटमेंट दिए हैं कि ये हिजाब वाले सब्जेक्ट को मैं असम्बली में राइज़ करूँगा, एक उम्मीद दिए हैं। तो बहरहाल मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उन्होंने जो कमिटमेंट दिए हैं, उन्होंने जो वादा किए हैं, इस वक्त का इंतज़ार करके हमारी कौम को देखना होगा और सब्र से सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सब्र और अखलाक से काम लेना होगा। जैसा कि शबीरुल इरशाद में कुमार स्वामी को जितने भी हमारे लीडरान थे, जो मुस्लिम लीडरान मुसलमान आ गए तो कुमार स्वामी करने तलक जाने नहीं देते थे। क्या वास्ते, चलो जी मैं मसला हल करता हूँ उनको बोलते थे। आज कुमार स्वामी को ये वादा दे को जा कोई क्या वास्ते, आज हमारे मुसलमानों के कौम के ऊपर हिजाब के बारे में जो काम भी जो मुसलमानों के ऊपर ऐसा हो रहा है, हिंदू मुसलमान की मया मोहब्बत प्यार मोहब्बत में तोड़ना चाह रही जो आदमियाँ, उसके वास्ते आज पूरे ब्लॉक अरबी कॉलेज में हमारे उलमा यहाँ से सभी एक गुफ्तगू कर को ऐसा नहीं, ऐसा कौम जो भी रहो, हर एक की बैको बच्ची रहो, जो हिंदू भी रहो मुसलमान भी रहो, कोई भी ज़ात रहो, ये गलाटा न को। ये कॉलेजान के अंदर
कौन सी भी कॉलेज रंदे, कौन सी भी माँ रंदे, कौन सा भी बच्चा रंदे पढ़ने जाते, ये कौन की एक बेहुदा काम करदाल को एक जने के तरफ से हर कॉलेज में तकलीफ़ हो रही है, हर एक स्कूल में तकलीफ़ हो रही है, हर एक हिंदू मुसलमान के प्यार मोहब्बत में ये सब गलाटे हो रही। ये नहीं होना कर को हमारे आलिमा उलमाया और उन्होंने भी अच्छा बोले कि आज उलमाया भी क्या बोले, बहुत अच्छी खुशी की बात हुई आज कुमार स्वामी साहब के साथ बैठ को बात कर को हमारे कौम के वास्ते, हमारे बच्चों के वास्ते, हमारे मदरसे, हमारे स्कूलों में ऐसे तकलीफ़ा नहीं देना। हिंदू भी रहते, मुसलमान भी रहते, हर एक भाई को बच्ची को भी एक स्कूल में पढ़ा को एक भाईचारा पैदा करो कर को हमारे आलिमा और उलमाया भी बोल को ही। ऐसा नहीं कि हमारे भाई को बच्चा है पढ़ना लिखना वैसा सब क्या भी बोले नहीं। आज बड़ी खुशी की बात हुई, एक JDS एक CM 2 टाइम CM बन को आज शबरुल इरशाद को है हाल पूछे उन्होंने। और ऐसे सेकुलर लीडर ही कुमार स्वामी और देवेगौड़ा साहब एक मुसलमानों के चूसे कर को नहीं, हिंदुओं को भी रंदे पूछती, हर एक जात को उन्होंने जाको पूछ रही कि आने वाला 2020 पर 3 के इलेक्शन से नहीं पूछ रही। आज हालात देख को देवेगौड़ा साहब अपने बेटे को ताकीद दी, जहाँ कर्नाटका के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हमारा कर्नाटका एक फूल के सका, हिंदू मुसलमान ईसाई सब मिल को ही वो फूल टूट जा रहा है, तू जाकर जोड़ कर को बोल को ही इंशाअल्लाह उसके वास्ते आज कुमार स्वामी आको ये फूल जमाने के वास्ते एक हिंदू रंदे, एक मुसलमान रंदे, एक ईसाई रंदे, भाई भाई भाया भाया कर को आज उन्होंने बात कर को गए। बहुत खुशी की बात हुई कि हमारी पार्टी में भी एक ऐसा भी एक लीडर है। इंशाअल्लाह हमें आने वाले दिनों में हर जगह भी हर एक हमारे मुसलमानों के कौम को बोल रही, देखो बी टीम बोलती। आज कुमार स्वामी के दिल में एक भी ज़बान में बी टीम जो BJP को जाती हूँ ऐसी सब क्या भी नहीं। हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने जाको JDS से जाको कांग्रेस को जाको बी टीम बना को ही। आज के दिन तुम्हें लोग भी थे, कुमार स्वामी ना मौलवी साहब से अलग मिले ना उन्होंने मौलवी साहब उनसे अलग नहीं मिले। आवाम के सामने जो भी बात चली, जो भी रंदे हमारा कर्नाटका का खुशी के वास्ते बात करे उन्होंने, ऐसा एक सेकुलर लीडर, ऐसा एक सेकुलर CM रहा तो आने वाली पीढ़ी हिंदू मुसलमान भाईचारा पैदा कर सकती है।